happens when once we say a movement, uh, it is like one actor, one person moving from one space to other. That is also a movement. Every movement requires a motivation. Why a person is moving, and there are some movements which are created to uh, break the variety or break the monotony also on stage. But as a training part, we would like to create some body movement using our body parts. So, as an actor, if you are training your body, how you can create the movement? That is the major problem here. What is the source for your movement? So, we have taken up a very simple kind of a methodology here. Uh, Movement class, may usually we will play some music and try to learn some steps using the music, and accordingly how our body is going to move. That is one way of doing it. And then other way of doing it is finding our own body movement, finding our own body movement. Instead of somebody is teaching you some kind of a movement and you are just seeing it physically and just repeating it and trying to get that into your body. And that is the one of the way. And the other way is now what I am going to plan is, I mean, I was trying for the couple of batches is you are going to create your own movement using your surroundings. Let us say I'm right now, listen carefully, I'm what I'm saying is trying to create a movement using your own head. Observe your own surroundings, and there are several objects are available. Let us say if I am seeing right now in front of me there is a desktop through which I am talking to you. So if I am seeing that, I am trying to create the movement using my head and creating the shape of that desktop using this will be my own my own movement using my own face, my own head. So similarly, you can try the number of objects around you. That may be a smaller one, that may be a bigger one, whatever. You can try to create movement with your own head first, and then you can try to create with your shoulder also. You are trying to create different kinds of geometrical progressions which are being created around you. There can be a circular kind of a thing, there can be a cylinder kind of an object available in your house, there is a rectangular, there's a square, huh? And there is a triangular kind of objects are available. You look around you, there is a globe which is circular. So you can create looking at that object and try to create with your shoulder and then knee and then your hand and then later with your knees and even your foot. Okay, try with left and right hands so that you can get that ball. And that is one way of creating movement without getting any information or any training from anybody, because nature has given you many things. Like you have in your own room, in your own flat, you observe many things. Observation. So let us have a small exercise today. I will give you 20 seconds time. I will give you 20 seconds time, all of you. You try to identify how many circular kinds of objects available in your own room. Okay, you understand? When I say start, you need to take 20 seconds, and within the 20 seconds, how many circular objects are available in your room, you are going to count me and you are going to tell me. Okay, now your time starts now. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. हाँ, how many? 20 seconds नहीं हुआ, युगंधर को पूरा पता चल गया. Yeah. How many? How many you got? What is the Sir, number? eight, 8, eight, 5. Saurabh, Five, 5. Ah, five, sir. okay. 5, only 5. Okay. 9, Shreyas. Okay. Rahul, 18. Okay. Okay.
Okay, that's wonderful. And I will give you 10 more seconds. 10 seconds में कितना होगा देख लेना, ठीक है? 10, only 10 seconds. Okay. Now your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अरे युगंधर 35 हो गए 10 सेकंड्स में. मैंने टाइम हुआ ही नहीं. हाँ ध्रुवा. Yes, sir. Yes, sir. There are circular 20 circular this caps only. Okay. The number it is increasing or decreasing? When I said first time, second time number is Earlier it was increasing. 32. Increasing, Now increasing. it should increase, because uh, our observation power. Okay, fine, increasing because see, once you say within 20 seconds you could find, within 10 seconds also you can find more circular because we'll be more careful to identify those circular things which are available in your room. Okay, so now what I was trying to tell you is try to see the objects around you and try to create the movement with head and hand and even with your elbow and even with your shoulder. Yoga maybe there will be some exercises and you are doing some workout, you will also do some exercises with shoulders. This is like warm up exercise, the same exercise we are doing, but now with your shoulders you are trying to create the shape of any object which is around you. You remember, that can be a circular one, that can be a cylindrical one, that can be a triangle. Try to write a triangle with your shoulder. Is it possible? This is possible. You try. We have never done this. Maybe somebody might have done this exercise also. I don't know. So this is the how we are going to create a movement using inanimate objects. Inanimate objects, the objects which are not able to move by themselves, isn't it? You see, I'm keeping one glass here. Unless I take it out, and it cannot move. It doesn't have any engine in this. Yeah, if it is something like keyboard or your pen or pencil or a notebook, everything which is not able to move, that is inanimate objects. You can see the inanimate objects around you and you try to create the shape of that, even a calendar or a photo frame or a design which is already made, or on a wallpaper there is some design is there which is maybe it may be abstract also. It need not go with your geometry. The shapes are like curved, the different lines are there. That is how you are going to create, how you are going to see them, and you try to create with your head, shoulders, elbows, and even with your fingers and using your hands. You can do that. See this kind of a movement. Okay, so there are two kinds of movements which we try to learn. One is the organic movement and the other is geographical movement. What is organic movement? Organic movement means there is no particular shape is there. When you are saying that this curve, if you are using your, there is a design which is very much curved. There is no geometry in that. So there is no particular geometry is there. One point going anywhere like. So there is no particular shape. In other words, there is no particular shape. It is known as the organic movement. But when it comes to geographical movement, it is having a perfect shape. Let it like a rectangular if I'm drawing using my desktop. So it is geometrical movement. If you walk on a straight line and turning back and then coming back like a square, you are creating with your movement a square. It is known as a geometrical movement. If your body is moving in a different direction without any particular shape or dimension, it can be called as an organic movement. This is to understand. We know it. We know the movement can be different. But in order to, why we always categorize certain things, why we put them into different boxes, so that we can understand very easily. If there is any doubt up to this till moment, you can ask. Then we'll go for the next exercise today. सर सर एक बार वापस समझा दो सर, मेरे को समझ में नहीं आया सर. समझ में नहीं आया राहुल? यस सर. मैंने बोला था, हिंदी में बोलूं क्या?
हाँ मैं सर, हिंदी बोलता में। हूँ आपके आसपास में कोई भी वस्तु को आप देख लीजिए। जैसे से सपोज मैं इस ग्लास को देखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, फिर इस ग्लास का जो जो शेप है, ग्लास जैसा दिख रहा है, उसी को मैं हेड के द्वारा अपने सिर के बले उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके ऊपर एक सर्कुलर शेप दिख रहा है, उसके नीचे दो लाइन दिख रहे हैं और नीचे एक डंडा दिख रहा है। तो इस चीजों को मैं अपने हेड से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे हाथों से भी उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं हमारा जो शोल्डर है उसे भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी मूवमेंट को, उसी ग्लास को। और फिर मैं हो सकता है कि मेरे एल्बो से भी करूंगा और मेरे नी घुटनों से भी उसका शेप ड्राने की करने की कोशिश करूंगा। तो ये मैं इस बता रहा हूँ कि आप इस मूवमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे। आपको कोई टीचर मिलेगा एवरी हर बार आपको आके आपको मूवमेंट सिखाने की कोशिश करेगा, कैसे मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं आपको ये बताएगा। इससे भला है कि आप अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए, आपके पास बहुत सारे ऐसे शेप्स दिखेंगे आपको। उस सारे शेप्स को अपने बॉडी में लाने की कोशिश करेंगे। यू स्टार्ट विथ योर हेड एंड यू कैन ट्राई विथ योर शोल्डर, शोल्डर से भी ट्राई कर सकते हैं और एल्बोस पे ट्राई कर सकते हैं, और इवन विथ योर हैंड्स एंड फिंगर्स आल्सो यू कैन ट्राई टू ड्रॉ द मूवमेंट which is available around you. राहुल, अब समझ में आया? और भी डाउट है अभी? पर सर ये अपन जैसे अपन ये मूवमेंट करेंगे उसके मतलब जैसे किसी को देखकर, फिर सर इस हाँ, मतलब उससे सर होगा क्या, मतलब क्या अपने माइंड में आएगा, या फिर इससे ऑब्जर्वेशन कैसे होगा सर? मैं समझा नहीं मैं सर। तुम्हें मूवमेंट ऑब्जर्वेशन जैसे क्रिएट आप। करने, ऑब्जर्वेशन की बात ही नहीं किया मैंने। ऑब्जर्वेशन तो इसीलिए करेंगे कि आप उसका शेप कैसा है, मूवमेंट कैसा क्रिएट करोगे। अब तुम डांस कर रहे हो, कोई म्यूजिक बज रहा है, उसमें अपने हाथ पैर हिला रहे हो, इसका मीनिंग क्या है फिर बताओ तुम? उसका क्या मीनिंग हो सकता है? सर वो तो एक मूवमेंट हुआ कि मतलब इधर से पीछे जा रहा, पीछे से वही आगे आ तो रहे मैं हैं बस। बोल रहा हूँ ना, अभी तुम इसको मूवमेंट क्रिएट करो, इसको हम फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो खुद एक डांस बन जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरा वही है, ठीक है? अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है करके सर। जाओ तुम। अब तुम पहले ही तुम बोल रहे हो कि उससे क्या होगा, तो पहले तो तुम ऑब्जर्व करो, क्या तुम उस ग्लास का मूवमेंट अपने सर से क्रिएट कर सकते हो, अपने हैंड से क्रिएट कर सकते हो? ये पहले देखो तुम, दिस इज योर टास्क नाउ। लेटर तुम उसको एक्सपीरियंस करने के बाद बताओ कि आप इस चीजों को कर सकते हो या नहीं कर सकते। मूवमेंट कैसे, अब ये छोटा सा मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएट करने के लिए, यही नहीं क्रिएट किया, कोई डांस डायरेक्टर आके आपको कोई सिखा रहा है, तो विल यू बी एबल टू डू इट? अब उससे भी यही सवाल पूछोगे कि इसे करने से मेरा ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। मैं ऑब्जर्वेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने के लिए उस शेप को, तो उसको माइंड में ला के फिर हेड के साथ या एल्बो के साथ या शोल्डर के साथ या हैंड के साथ उसको कैसे क्रिएट करें, सिर्फ उसको देखने तक ही है। Observation and acting, that is a different. I am talking about only body movement part of it. You understand? इसमें कोई इमोशन डेवलप नहीं होगा, इसे कोई आपको क्या बोलते हैं, एक्टिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये मूवमेंट एक्सरसाइज है। समझ रहे हो ना? मूवमेंट एक्सरसाइज की तरह इसको लेना चाहिए। और दूसरा एक्सरसाइज, वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड, आई कॉल इट एज अ स्पेस एक्सरसाइज, स्पेस राइटिंग एक्सरसाइज। सभी को एबीसीडी आता है? सभी को एबीसीडी आता है ना? अल्फाबेट्स, यू नो अल्फाबेट्स? हाउ मेनी आर देयर? एनीवन? 26. 26। वंडरफुल आंसर। तो अभी हम एबीसीडी सीखेंगे। हम अपने बॉडी से एबीसीडी लिखना शुरू करेंगे। उसे मैं कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। आई विल पोस्ट a video also how we are trying this. So I am keeping my hands like this. ऐसे मैं थोड़ा डिस्टेंस रख के ऐसे मैं कर रहा हूँ. Let us say this is my pen or pencil. With this I am going to create the alphabet. Okay. I am standing full size stand करके, मैं अभी तो बैठ के कर रहा हूँ, मगर इस एक्सरसाइज को आप खड़े होके करेंगे. And now I am going to create an alphabet A. आपको शेप दिख रहा है? अब मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ये लाइफ साइज अल्फाबेट होना चाहिए. लाइफ साइज अल्फाबेट का मतलब ये हुआ, आपका हाइट जितना है उतना आप ए क्रिएट करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम, लेटर से स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट लेग से हमने अपना पेन और पेंसिल उठाया और वो शेप जा रहा है और मेरा सर तक आया है और मैं फिर नीचे ले जा रहा हूँ, फिर ऊपर आ रहा हूँ एंड देन
And the rule is, आप अपना अल्फाबेट कंप्लीट करने तक यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ दैट अल्फाबेट, इन द सेंस कि ये, जब तक ये अल्फाबेट कंप्लीट नहीं होता, एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट अल्फाबेट विद योर बॉडी. एनी डाउट इन दिस? I'll post a video, don't worry about it. This is called life size alphabet. ये पूरा ए और आपको बॉडी से क्रिएट करना है, ना कि किसी बोर्ड के ऊपर आप नहीं लिख रहे हैं. एंड इसीलिए मैंने बोला कि आपका अल्फाबेट का साइज कितना होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, आप डिसाइड कीजिए, इतना डिस्टेंस रखिए एंड मेंटेन दैट डिस्टेंस, मेंटेन दैट साइज ऑफ द अल्फाबेट सो दैट यू कैन क्रिएट द अल्फाबेट. ओके, ये हो गया, बी हो गया, ABCD. अगर आप इसको ट्राई करेंगे, इट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी ऑल्सो एंड योर वॉइस एक्सरसाइज ऑल्सो. इसके साथ साथ आप यू आर गोइंग टू से, ये अनलेस यू स्टार्ट विथ ए से, जब स्टार्ट होगा एंड स्टार्ट सेइंग ए, ये एंड यू कंप्लीटिंग द अल्फाबेट बी, इससे वॉइस एक्सरसाइज भी होगा एंड यू आर क्रिएटिंग ऑल्सो ए मूवमेंट. Later, if you put only doing alphabet and playing some music, nobody can find out you are writing only alphabet. If you are trying for some other alphabets like हिंदी का अगर मैं लेता हूँ तो उसके शेप्स अलग हो जाते हैं. अगर आप लिखना की कोशिश करेंगे तो सोचिए कि कितना कर्व्स है उसमें, तो आपकी बॉडी कितना मूव करेगी. कोई नहीं बोलेगा कि आप आ लिख रहे हो, ऊ लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, तो आप उसको लिख के देखिए स्पेस में, तो आप अपने आप को पहचानिए कि आपने कैसे मूवमेंट क्रिएट किया. नोबडी इज नीडेड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ ए मूवमेंट. लाइक इस तरह का मूवमेंट अगर आपको चाहिए तो यू नीड नॉट वरी अबाउट अ डायरेक्टर एंड ए कंपोजर शुड कम टू यू एंड टेल यू समथिंग. ऐसे ही आप वो एक आ लिख सकते हैं जो आपके अपने आप में एक मूवमेंट बन जाता है. ओके, so this is what space writing एक movement है, जो movement exercise है, which will help you to understand how you can create the shapes, how can you create different kinds of a movement using your own body. This is life size in the sense आपका जितना height होगा. If let us say my height is 5'5", वहीं तक उसका होगा. If you are somebody is 4 feet होगा, 6 feet होगा. There is some disturbance coming here somewhere. Ankit Maurya, can you listen to me? My God, can you switch off your microphone, please? Thank God. So this is something called space writing, and अभी इस सेशन के बाद मैं I'm going to send you a video, post your video so that you can understand how best it can be done. Okay, that is one area. Using hands and pen and write alphabets in English. Try to keep the distance between the two hands so that you are trying to create some kind of a size. जैसे पेंसिल लिखने से उसका साइज पता चलता है ना, the thickness of that one particular alphabet you can show with the dimension like this. Let us say if I'm starting from here, ये it should be starting from my foot, है ना, नीचे से हम शुरू करते हैं एंड मेरा लाइफ साइज मतलब यहाँ तक मेरा हैंड्स आएंगे एंड देन अगेन दे विल गो बैक टू माय राइट लेग एंड आई विल कम बैक इन द मिडिल and try to complete the game. Okay, that kind of an exercise you try to do it, and that is we call it as a space exercise. Apart from space exercise, we will be trying to identify our own body with reference to the gravitational force available to us, like a slow walk, moonwalk. If your body is getting heavier than ever because of this increasing and decrease of gravitational force, and your body is becoming very light, ऐसे स्पेस में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा बॉडी कैसे मूव करना चाहता है, मूव हो जाता है अपने आप. तो इन चारे चीजों को हम इमेजिन करके करेंगे. दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट टुडे. सो एनी डाउट अबाउट दिस स्पेस राइटिंग, यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस अभी तक जो मूवमेंट के क्लास में. Harsha,
Okay. Yeah. Anyone? No questions. No questions. Okay. So now what you are going to do is you are going to create, yeah, you are going to create some kind of a movement using your head, using your shoulders, using your elbows, and using your hands. Okay. And the alphabet exercise which I have told you, to create alphabets using your body and uttering that alphabet, that is the most important thing. तो बॉयज का एक्सरसाइज भी हो जाएगा और बॉडी का मूवमेंट का एक्सरसाइज भी हो जाएगा. उसको आप करके यू कैन सेंड द वीडियो, और इफ नॉट इट इज नॉट यू, आप अपने आप करके देखिए. इफ यू फील लाइक सेंडिंग मी फॉर फीडबैक, यू कैन डू इट. Otherwise, you keep it as only exercise. Okay. Somebody has texted. Yeah. Right. Okay. Anything else regarding the other aspects of the program? Now, I hope you have submitted your assignments also, because the last date, I think it is again extended up to month end. So you can send it, whoever not sending. And the people who have not yet filled the examination form, they also need to fill the examination form. Any doubt regarding the other aspects of the program, they can ask very quickly. Yeah. Anyone? Okay. If there are no doubts for today's session, we will call it a day. हेलो सर. Yeah. प्रणाम सर. सर आपने हमें एक एक्सरसाइज दिया था जो एक डायलॉग था जिसमें हमें कुछ भी एडिशन नहीं करना था कि मेरा नाम तो सर वो उसके लिए मुझे पूछना था कि हम उसे लर्न कर लें, फिर उसके बाद उसमें हमें क्या करना है. हाँ, चलो अच्छी बात है, मैं भी भूल गया उसके बारे में. तो लेट अस डिस्कस दैट. मैं वो डायलॉग क्या था, मेरा नाम शेषु है, मेरा पूरा नाम आदि शेषु है. तो इफ यू डू ए वेरी सिंपल एक्सरसाइज, उसे कोई एडिशन डिलीशन नहीं करना, उसको उसी तरह से बोलना. लेट अस से सिंपल एक्सरसाइज व्हिच वी विल डू इट. मेरा नाम शेषु है. अब हम लेट अस से मेरा इस वर्ड के ऊपर अगर हम स्ट्रेस देते हैं तो उसका मीनिंग कैसे बदल जाता है. नहीं तो फिर सिंपल आप इसको ऐसे कीजिए, इसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट में उसको बोलने की कोशिश कीजिए. लेट अस से यू आर वेरी टेरिफाइड, डरे हुए हैं, तो आप कैसे बोलेंगे. इफ यू आर हेकलिंग समवन, किसी को मजाक किया जोवियल मूड में आप बोल रहे हो, तो कैसे बोलेंगे. एंड किसी को डराना है, यू आर थ्रेटनिंग समवन, so how you are going to say. You are actually crying, somebody has hit you very badly, then you are saying this line, how you are going to say. And you are saying very romantically, you are saying this, how you are going to say. You are very happy, then how you are going to say. You can try with different kinds of things. The only rule is that you are not supposed to add anything or subtract anything from that. So try this, and later I will tell you about this stress. The word stress is there, na? तो एक वर्ड पे हम स्ट्रेस देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग ए लाइन कॉल्ड, ये गहने मैंने चोरी नहीं की. सिंपल सेंटेंस, ये गहने मैंने चोरी नहीं की. अगर मैं ये वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देता हूं तो ये गहने नहीं चोरी की, किसी दूसरे गहनों को मैंने चोरी. ये गहने मैंने चोरी नहीं की. अगर मैं गहनों के ऊपर स्ट्रेस देता हूं, गहने नहीं उठाया, किसी और सामान को उठाया. ये गहने मैंने चोरी नहीं की, मतलब मैंने चोरी नहीं की एंड somebody else might have done it. ये गहने मैंने चोरी नहीं की, मैं चोरी नहीं किया, somebody has might have gifted me. So this is how we are going to bring the variety, how we are going to break the monotony. मैं ऐसा बोल, मैं ये गहने चोरी नहीं की, it is very monotonous in a line. इसमें अगर हमको वेराइटी लाना है तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब किस संदर्भ में इस वाक्य को, इस सेंटेंस को बोला जा रहा है, उसको हमें समझना चाहिए. उसके बाद हम इस लाइन को डिफरेंट स्ट्रेस देके हम उसको ट्राई कर सकते हैं. अब शेषु वाला लाइन जो है, आप
मैं आपको ग्रुप में टाइप करूंगा कौन कौन से जैसे कॉन्टेक्स्ट होंगे, 5-6 कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे, जैसे यू आर टेरिफाइड, यू आर एंजॉइंग, यू आर थ्रेटनिंग समबडी, और यू आर रियली वरीड, you are in a bad mood, you are in a jovial mood, something like that. I will try to create some context for that, and you can practice that line in the particular context to show the variety. Okay, yeah. Anyone else? और कुछ लोगों ने उस ऑडियो को भेजा है, बोलने के बावजूद कुछ ऐड किया, कुछ सब्सट्रैक्ट किया, ऐसा उन्होंने किया है। जेनिस, यस सर। सर एक चीज़ और थी, आपने अभी बोला था कि हम कुछ बात कर सकते हैं जो हमारे असाइनमेंट्स के बारे में। सो सर असाइनमेंट्स का इशू आ रहा था सर, साइट पे उसको सबमिशन के लिए हमने उसका साइज भी छोटा किया फाइल्स का, बट वो फिर भी सबमिट नहीं हो रहे हैं। और ठीक है, अब हमें गाइड किया है कि हम उनको मेल करें स्क्रीनशॉट के साथ, तो वो भी ऑलरेडी कर दिया है। सो सर आगे अच्छा। और कोई वहां से रिप्लाई नहीं आ पाया, तो सर मुझे कुछ वरी करना चाहिए? डोंट वरी अबाउट दैट, कि अगर यू मार्क मी ए कॉपी, ये सर वो यू मार्क मी ए कॉपी, हाँ वो भी हो गया है। ठीक है। सर और कोई गाइडलाइन अगर हो? नहीं, अगर वी आर ट्राइंग टू अपलोड इट इन द वेबसाइट RC Delhi 1, RC Delhi 1 का हमारा ये है, तो अगर उसमें नहीं हो रहा है तो मार्क मी ए कॉपी, दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। या किसी को मनीष है, रेज योर हैंड, या स्टिल बताइए सर। उस सेंस मेमोरी के बारे में एक बार सर दोबारा बताएंगे सर, कैसे उसको सेंस को, कोई एक्सरसाइज है जिससे मतलब उसको नहीं, मैंने आपको बोला था सेंस मेमोरी में 5 सेंसेस के बारे में आपको बोला था, सेंस ऑफ टच के बारे में, सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में। मैंने मेमोरी इसीलिए बोला कि इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दीज सेंसेस फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू अप टू योर एज व्हाटएवर, so there are many memories which are there with these senses, isn't it? उसी मेमोरी को you have to recall back and do the exercise. अभी आप कोई खट्टा चीज खा के उसको एक्सपीरियंस करके मुझे नहीं बताना है। There are already things with you, you might have tasted something sweet, something sour or something hot, whatever. उसी मेमोरी को रिकॉल करके उसी एक्सरसाइज को यहाँ पे दिखाना है, ना कि अभी उसको टच करके दिखाना। आपने कभी किसी सोर थिंग को नहीं खाया है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। You take out from your own experience, that's what I'm saying. If sense of touch, you have touched something very hot or very cold in some time of the कभी अपने लाइफ टाइम में किसी किया होगा, उसी को रिकॉल करने। That's because of we are talking about sense memory. Yes sir. सेंस का जो मेमोरीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी को हमको रिकॉल करने की कोशिश करना है। Let us say sometime you might have been very happy. Try to recall that now. So Sir, that is that. सर रिकॉल करने का ही कोई एक्सरसाइज है? कैसे रिकॉल करेंगे सर? मतलब ये तुम्हारा सेंस है, मैं कैसे बताऊंगा? ऑन डिमांड कोई एक्सरसाइज, जैसे ऑन डिमांड कैसे करेंगे रिकॉल? भैया ऑन डिमांड कुछ नहीं होता है, आपके प्रैक्टिस के साथ जब ज्यादा प्रैक्टिस होता है ना, जब भी ऑन डिमांड होता है ना, यू अंडरस्टैंड। ऑल ऑफ अ सडन इफ समबडी एक्टिंग लाइक अरे कैसे किया इसने, तो उसने कितना प्रैक्टिस किया होगा इन चीजों को, हमें वो ध्यान रखना चाहिए। That is nothing like very ready-made kind of a recipe like. Okay. रेसिपी बनी गई है तो उसके पीछे बहुत सारा वर्क जुड़ा हुआ है ना। एक्टर का जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, बार बार उस कितनी बार किया होगा, कितना रोने की प्रैक्टिस किया होगा, हंसने की प्रैक्टिस किया है। जब भी कैमरा के सामने जाता है तो एक झटक में वो कर देता है, तो वो वहां पर कोई रेडीमेड एक्सरसाइज नहीं है, वो उसका पिछला जो वर्कआउट है उसी को फिर वो यहाँ पे रिपीट करता है। तो एक्टर का एक क्वालिटी है कि वो रिपीट करने की क्षमता रखता है, तो रिपीट करने की क्षमता नहीं रखता वो एक्टर नहीं बन सकता। है, समझ रहे हो ना? आई एम रिपीटिंग माई ओन मेमोरीज, माई ओन एक्शंस, माई ओन हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस फॉर इंडिविजुअल पीपल इज डिफरेंट। तो एज अ डायरेक्टर आई विल टेल यू, यू आर वेरी हैप्पी। अरे कैसे? दैट इज माई हैप्पीनेस। अगर I have been put up in one particular situation where I have got a gold medal. If I have got a gold medal, I'm not talking about everybody. If myself have got a top the university, then how I feel, I will do it.
आई कैनॉट डू। मनीष को अगर गोल्ड मेडल मिलता है तो मनीष कैसे करता है वो मैं नहीं कर पाता हूँ, अनलेस आई सी मनीष डूइंग इट, इजंट इट। उसको मनीष को हैप्पीली देखूंगा तो शायद मैं ट्राई टू फील दैट मनीष फीलिंग्स आल्सो इनटू मी इफ यू आर अ ट्रेन्ड एक्टर। तो आई अदरवाइज आई विल डू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस, इजंट इट। कैरेक्टर को अगर हम देखते हैं तो हम पहले देखते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल डायमेंशन। मुझे अगर कैरेक्टर कोई दिया गया है तो क्या मेरे पर्सनल कैरेक्टर में भी क्या इन चीजों को कहीं ना कहीं है, क्या मैं कैरेक्टर से क्या कितना दूर हूँ, कितना नजदीक हूँ, ये पहले मैं देखता हूँ। तो अगर मैं बहुत नजदीक हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस को लेके ही इस कैरेक्टर को कर सकता हूँ। अगर कैरेक्टर के साथ जो लक्षण है मेरे में बिल्कुल नहीं है तो देन आई विल गो फॉर द ऑब्जर्वेशन पार्ट। बाहर जाके देखूंगा कि इस तरह का कैरेक्टर कहाँ मिलेगा, इस तरह का कैरेक्टराइजेशन के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। सपोज आई हैव नेवर यूज्ड एनी काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम लाइक ब्लेजर और शूज एंड ऑल दैट, लाइफ टाइम में मैंने कभी नहीं पहना। मेरा कैरेक्टर अगर उस तरह का है तो आई विल ट्राई टू डू गेट इनटू द शूज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड ट्राई टू मूव लाइक दैट, इफ योर आपका अटायर चेंज होता है, आपका ड्रेस चेंज होता है तो आपका मूवमेंट भी चेंज होता है कि नहीं? आपका है ना, you remove your glasses and you try to speak, your style will change, your body language will change, and once you put up your glasses, cooling or whether it's side glasses, your movement changes. If you use some kind of a different kind of a property with you in your hands, your body movement will change. अगर शू पहनते हैं तो आपका वॉकिंग स्टाइल थोड़ा बदल जाता है, चप्पल स्लीपर पहनने में आपका बदल जाता है। हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते मगर ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके सेंसेस के मेमोरीज जो आपके अंदर ऑलरेडी अनकॉन्शियसली आपके माइंड में है, ट्राई टू रिकॉल देम, अदरवाइज यू टेक द एक्सपीरियंस, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपने कभी पानी पूरी नहीं खाया है, उसको करना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई, बट दैट विल बी फेक काइंड ऑफ ए थिंग विल कम आउट। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे चीजें हम फेक करके 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 भी वन फाइन डे वी विल गेट ए correct kind of a sense memory exercise. This also happens with some of the actors, but I repeatedly tell you कि be natural. अब उससे अच्छा आप प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। आप नेचुरली उन चीजों को लाने की कोशिश करेंगे। What I mean natural here is don't overdo it. I mean, if you want to show that experience, don't do. When I say sense of sight, you have seen something. इतना एक्शन आप जिंदगी में होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मत कीजिए, ये मैं बोल रहा हूँ। समथिंग यू हैव सीन ऑन मोबाइल व्हिच लुक्स वेरी फनी एंड यू हैव लव्ड इट, इतना साइट एक्सपीरियंस के लिए ठीक है। अब उसको देख के सर को बताना है, सारे दुनिया को दिखाना है, इतना एक्सरसाइज कहाँ होता है? होता है क्या? होता है नहीं जिंदगी में, तो वो मत करो। मैं व्हाट आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू पुट अप दैट कि पुलिस स्टॉप, डोंट ओवरडू इट। फर्स्ट थिंग, ओवरडूइंग करने के लिए हमारे बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, वो बहुत इजी है। ऐसा करना बहुत आसान है, पर वो बहुत नेचुरली आप किसी वीडियो को देख के आप रिएक्ट कर रहे हो तो वो बहुत मुश्किल काम है ना। तो एक एक्टर टीचर कहते हैं कि मुझे डर है कि मैं एक्टिंग करते करते पकड़ ना जाऊं। तो लोग ये ना समझे कि मैं एक्ट कर रहा हूं। वो बोलता है कि मैं एक्ट करते करते कहीं पकड़ ना जाऊं। इसका क्या मतलब हुआ? Nobody should say that I am acting. I am into that character. Very naturally, if I am performing whatever that character is supposed to do, that is the success of the actor. वहां तक हमारा जर्नी चलेगी, ठीक है? तो मनीष, मेरा ये कहना है कि आपके सेंसेस में ट्राई कीजिए। थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको रिकॉल करने के लिए छोटे छोटे एक्सरसाइजेस कीजिए, बड़ा मतलब करने की जरूरत नहीं। एंड डोंट ट्राई टू पुट अप ऑल सेंसेस इट वन सिंपल एक्सरसाइज, है ना। सारे 5 सेंसेस को एक ही एक्सरसाइज में करने की भी कोशिश करेंगे लोग, है ना। उतना नहीं होता, कोई भी चीज आसानी से नहीं आती है। सेंस ऑफ टेस्ट के लिए हम सोचते हैं कि ये बहुत ईजी है, पर हम जब ट्राई करने जाते हैं हमको याद ही नहीं होता कि हम क्या करें। 1-2 बार ट्राई कीजिए, आ जाएगा। ओके, try that. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Yeah. Anyone? Any other questions? Otherwise, सर Ravi Shankar. जी सर, उस साइकोलॉजिकल मतलब
कैरेक्टर का सही साइकोलॉजिकल तक पहुंचने का मतलब किस तरह से उसको स्टडी किया जाए कि हम उसके एक सही साइकोलॉजी को पकड़ सकें? सर मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन पार्ट में आपको बताया था। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ अपने आंखों से देखना नहीं है। आंखों से देखना तो एक 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 विधा है। आप देखने से किसी का मेंटालिटी के बारे में आपको फिजिकल जो एक्टिंग है, फिजिकल एस्पेक्ट्स है, वो आपको पता चलेगा वो कैसे चलेगा। और वो कैसे सोचेगा जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, जब तक उसके किसी चीजों में उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट सर्टेन थिंग्स, यू मे नॉट बी एबल टू गेट हिज ओपिनियन। लेट अस से उस कैरेक्टर से बात करने की टाइम मतलब हमें मिला नहीं है, या फिर हम उस तरह का हमारा चांस भी नहीं मिला, तो हम कैसे करेंगे। तो उसी सिमिलर टाइप के कैरेक्टर के बारे में कहीं लिखा हो, जैसे रावण के बारे में लिखा है, राम के बारे में भी लिखा है, या विलन जो भी है ना, इस तरह का कोई मतलब who is brought up in a very slum kind of an areas, how they behave, there are some very much case studies है। वो उन्होंने क्या किया, इस स्थिति में उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, अच्छा रिएक्ट किया, बुरा रिएक्ट किया। अगर इन चीजों को हम बारीकी से पढ़ सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, किसी के साथ सुन सकते हैं, अपने खुद आंखों से देख सकते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा पता होगा। अगर हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, सपोज साइकी कैरेक्टर इज देयर, उसके बारे में किसी तरह का वो कैसे कब रिएक्ट करेगा हमें कुछ पता नहीं हो रहा है, देन वी ourselves can create certain kind of a characterization to that particular character and we can do that character। आप समझ रहे हैं, हमें किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डायमेंशन के बारे में पता ही नहीं चल रहा है उसके बारे में, हाउ ही बिहेव और हाउ शी विल बिहेव एट दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट। किसी मोमेंट में हंस देता है, किसी मोमेंट में उनको गुस्सा आ जाता है, किसी मोमेंट में वो बहुत प्यार से बात करते हैं। तो हम अपने तरफ से ही उस कैरेक्टराइजेशन को फिक्स कर सकते हैं, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये उसी लाइंस को हम अपने आप में लाने की कोशिश करके फिर उस कैरेक्टर को कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इफ द मटेरियल इज देयर इट इज वंडरफुल। अगर मटेरियल नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, है ना। हम खुद एक साइकी कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं कि इस तरह के मूवमेंट, इस तरह के सिचुएशन में वो इस तरह का बिहेवियर करेगा। मगर आपको ये याद रखना जरूरी होगा, कॉज एंड इफेक्ट, यू नो, कॉज एंड इफेक्ट। इस तरह का कॉज कारण है, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव करेगा। ऐसा नहीं है कि आप हवा में कुछ भी कर दें और हाँ भाई वो ऐसे ही करता है बस ठीक है, नहीं नहीं। ट्रेंड एक्टर के पास आपको जवाब होना जरूरी है कि वाई दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज बिहेविंग लाइक दैट, इन द सेंस कि पहले ही उसकी मोटिव को हम फिक्स करेंगे, मोटिव के वजह से ही वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, इस तरह का कारण है, इस तरह का सिचुएशन वो रह चुका है, तो इसीलिए वो हंसता है, या इसीलिए वो रोता है, या इसीलिए उस तरह से बोलता है ना। इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स देता है, कुछ लोग बाद में रिएक्ट करते हैं, अपना अपना स्वभाव होता है। तो उस स्वभाव को आप फिक्स करेंगे। अब आपके पास कोई भी उसके बारे में मटेरियली नहीं मिल रहा है, तो आप अपने तरफ से ही उसकी कोशिश करके उसके कैरेक्टराइजेशन को डिजाइन करके उसी कैरेक्टराइजेशन को फिर आपने फिजिकली उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। सर ये बॉडी मूवमेंट का एक्सरसाइज का वीडियो बनाना है या खुद से ही अभ्यास के लिए करना है? आप पहले अभ्यास कीजिए, जब आप समझेंगे कि परफेक्टली आ रहा है तो छोटा वीडियो बना के भेजिए, देखते हैं। मेरा इनबॉक्स तो भर जा रहा है। Very good evening, sir. Sir, you sent a video in group की वॉइस पे हमें वीडियो बना के भेजनी है, जिसमें कि वॉवल्स भी थे और ओम भी था। तो वॉवल्स पे तो सर वो मैंने बना के भेज दिया, क्या ओम की भी बना के भेजनी है? वो 10 बार आपने बोला था कि 10 बार बोलना है। तो भैया वो तो प्रैक्टिस के लिए ना, उसको वीडियो बनाने की भेजने की जरूरत नहीं है। वॉइस का जो भी एक्सरसाइजेस मैं वीडियो भेज रहा हूँ वो आपके प्रैक्टिस के लिए है ना। ओके कैसे, हाँ, डेली उसको प्रैक्टिस कीजिए अकॉर्डिंग टू द वीडियो। यू ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। मैंने 10 बार इसलिए बोला कि मिनिमम 10 बार तो करें। आपका अगर क्षमता है तो अच्छा है, तो आप उसी तरह से करते जाइए। उसके कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है और भेजने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके। या एनीवन एल्स? ठीक है, if there are no questions we'll call it a day।
Good day. See you in the next class. Bye. Take care.